हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। पहले मैं देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ 12 চ্যাপ্টার ভক্তি যোগ। ओके हाई स्टेज 13 एंड 14 नंबर श्लोक मैं बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए। अधिष्ठा सर्वभूतानां अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च मैत्र करुणा एव च निर्मम निअहंकार निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख खमी सम दुःख सुखनि संतुष्ट सततम योगी संतष्ट सतत योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय যথেষ্ট আত্মা চিরশ্রেষ্ঠ मर्जर्पित मनोबुद्धिर्ज মধ্যপিত মন বুদ্ধি मद्भक्त स्वामे प्रिय। মদভক্ত স্বামী প্রিয়। अगेन नाउ 12 चैप्टर भक्ति योगो से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 13 एंड 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। अधिष्ठा सर्वभूतानां अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च मैत्र करुणा एव च निर्मम निरहंकार निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख खमी सम दुःख सुख खमी संतुष्ट सततम योगी संतष्ट सतत योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय ततस्त दृढ़ निश्चय मर्जर्पित मनोबुद्धिर्ज মনোমিত মন বুদ্ধিজ मद्भक्त स्वामे प्रिय। মদভক্ত স্বামী প্রিয়। Repeat now 12 chapter Bhakti Yoga Srimad Bhagavad Gita as it is 13 and 14 number sloka. Supreme Personality of Godhead Krishna Bhagavan says, अधिष्ठा सर्वभूतानां अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च मैत्र करुणा एव च निर्मम निरहंकार निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख खमी सम दुःख सुख खमी संतुष्ट सततम योगी संतष्ट सतत योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय जतात्मा दृढ़ निश्चय मज्जर्पित मनोबुद्धिर्ज मज्जर्पित मन बुद्धिज मद्भक्त स्वामे प्रिय। मद्भक्त स्वामी प्रिय। ओके हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोलिए पहला। अध्यष्टा सर्वभूतां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख कर्मी खमी संतुष्ट ततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मर्जर्पित मनोबुद्धिर्ज मनोबुद्धिर्ज मदक्त स्वामी प्रिय मद्भक्त स्वामी प्रिय। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। श्री भगवद गीता যথাযথ অধ্যায় 12 শ্লোক নম্বর 13-14 অদৃষ্ট সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ निर्मम निरहंकार सम दुःख सुखी खमी संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ नाउ मर्जर्पित मनोबुद्धिज मद्भक्त स्वामी प्रिय। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় নম্বর 12 শ্লোক নম্বর 13/14 অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং मैत्र करुण एव च
निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख खमी খমি খমি खमी খমি खमी सन्तुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मज्जप्रीत মজ্জোর मज्जप्रीत मन बुद्धिर्ज হ্যাঁ मद्भक्त समे प्रिय ভেরি গুড নেক্সট শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 12 অধ্যায় 16 নম্বর 13 কি 14 ভক্তিযোগ অতষ্ট সর্ব অতষ্ট না অদিষ্ট অতষ্ট সর্বভূতান মিত্র করুণা এবচ করুণ করুণা এবচ ভেরি গুড নিম নিরহ নির্মম নির্মম নিরহংকার সম সম দুঃখ সুখ সুখ কমিহ খমি খনি খমি খনি খমি সন্তুষ্ট সততা যোগী যথাত্মা দুষ্ট দুষ্ট নয় দৃঢ় দৃঢ় নিশ্চয় নিশ্চয় অহ নিষ্ঠ অ অন্তস্থ হ মধ্যস্থ মজ্জোর মজ্জোর পিত মজ্জর পিত মনো বুদ্ধির্য मद्भक्त स्वमे प्रिय वेरी गुड बहुत अच्छा हुआ अच्छा फिर मैं ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बंगाली में देख लेता हूँ অদিষ্টা অদিষ্টা দেশ বর্জিত দেশ বর্জিত সর্বভূতানাং সর্বভূতানাং সমস্ত জীবের প্রতি সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্র মৈত্র বন্ধু ভাবাপন্ন বন্ধু ভাবাপন্ন করুণ করুণা কৃপালু কৃপালু এব অবশ্যই অবশ্যই চ চ ও ও নির্মম নির্মম মমতা শূন্য মমতা শূন্য নিরহংকার নিরহংকার মিথ্যা অহংকার রহিত অহংকার রহিত সম সম সমভাবাপন্ন সমভাবাপন্ন দুঃখ দুঃখ দুঃখে দুঃখে সুখ সুখ সুখে সুখে ক্ষমি ক্ষমি ক্ষমাসী ক্ষমাসী সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট পরিতুষ্ট পরিতুষ্ট সততম সততম সর্বদা সর্বদা যোগী যোগী ভক্তিযোগে যুক্ত ভক্তিযোগে যুক্ত যতাত্মা যতাত্মা সংযত সভা সন্তুষ্ট সভা দৃঢ় নিশ্চয় দৃঢ় নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্প যুক্ত যুক্ত মই মই আমাতে আমাতে অর্পিত 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 মন 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 বুদ্ধি 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 যা যা যিনি যিনি মদভক্ত মদ্ভক্ত আমার ভক্ত আমার ভক্ত স স তিনি তিনি মে মে আমার আমার প্রিয় प्रिय प्रियो प्रिय हरे कृष्ण अच्छा इसका मीनिंग्स अनुवाद पढ़िए बंगाली में पहला फौजी অনুবাদ যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দেশ শূন্য বন্ধুভাবাপন্ন কৃপালু মমত্ম ममत्व মমত্ব বুদ্ধিশূন্য নিরহংকার निरहंकार নিরহংকার সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন ক্ষমাশীল সর্বদা সন্তুষ্ট সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত সংযত স্বভাব দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ओके हरे कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग बात है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान सेज क्या बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर जो मनुष्य देश शून्य किसी से भी ईसा परायण जो हिंसा कहा जाता है ईसा परायण व जेलसी भाव नहीं है बंधुत्व भावापन्न दोस्ती भाव कृपालु कृपा वर्षण ममत्व ममता शून्य बुद्धि शून्य नीर अहंकार मतलब मेटेरियल बहुत नीर अहंकार मतलब फॉल्स जो है वो मिथ्या अहंकार का बारे में बात करें फॉल्स ईगो जो है सुख एंड दुख के स्वभावापन्न सुख आएगा भी फिर भी कठिनाई नहीं है दुख आएगा भी उसमें भी उसको कोई विचलित नहीं है ये बात क्षमाशील हर मनुष्य को मतलब कोई अच्छा कर्म करे बुरा कर्म अगर उसको कठिनाई हो जाए फिर भी उसको क्षमा प्रार्थना दे ठीक है ओके मैं इसको मान लेता हूँ ये बात है क्षमाशील सर्वदा संतुष्ट एनी टाइम अगर उसका पास कोई चीज़ कर्म के लिए हो आ गया बा कम भी आ गया उसमें भी उतना मतलब विचलित तो नहीं है स्टील है और संतुष्ट है जो मेरे को जो मिले ये भगवान ने दिया सर्वदा संतुष्ट सर्वदा भक्ति योगे युक्त
और डिवोशनल सर्विस एनी टाइम जॉइंट है भगवान के लिए। और संयत स्वभाव, मतलब हर चीज़ों में उसको भाव जो रहेगा, भक्ति मार्ग का एक प्रोग्रेस है। कोई छोटा मोटा बातों से इतना मतलब ये नहीं है, फोर्स नहीं है जो ओके मैं इसमें से कोई कठिन नहीं, वो एकदम स्टील है। दृढ़ संकल्प युक्त, दृढ़ प्रतिज्ञा, जो भगवान है बा हर मनुष्य अच्छा तरफ से ये कर्म कर रहे बा भक्ति मार्ग में सब मनुष्य है इसको। और इधर बात नहीं है मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंट सर्वदा आमाते अर्पित। कृष्ण भगवान क्या बात नहीं को जा रहे, उसका मन जो माइंड है और बुद्धि जो दिमाग इंटेलिजेंट जो है वो भी मेरे से अर्पित किया, तीन ही मेरा प्रिय है, वही भगवान का प्रिय है। ये भगवान आज का श्लोका में क्या बताने को जा रहा है, जो मेरा भक्त कैसा होना चाहिए उसका सिम्टम्स बता रहे हैं। मेरा भक्त का जो सिम्टम्स है ऐसा होना चाहिए, जो किसी से भी ईर्ष्यापरायण नहीं है, जेलसी भाव बा एमबी भाव नहीं है, और एनी टाइम बंधु भावापन्न, किसी से भी शत्रुता नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियरली कृपालु, एनी टाइम मतलब कृपा वर्षण कर, मतलब किसी से भी कोई ये नहीं है अच्छा ठीक है ओके ऐसा भाव है, और कोई एक सब फॉल्स ईगो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मनुष्य मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो भगवान भक्तों का सिम्टम्स बता रहे हैं, जो मेरा प्रिय भक्त कौन है। हर मनुष्य भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कुछ लेने के लिए बा कोई और भी कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्ब दिमाग में जो भी हो सकता है, कोई मांगने के लिए कुछ, किंतु भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो मेरा प्रिय भक्त वो कौन है, जो ये सिम्टम्स है जिसका पास, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु सिस्टम में क्या बताया था, जैसे तीनादपि सुनीचे न तरुरूपी सहिंस न अमाने न माने देना कीर्तनियो सदा हो। जो मनुष्य मेरा गुणगान कर रहे और वो घास का तरफ, जैसा हम लोग घास देखता हूँ नीचे कितना सॉफ्ट है, हवा देने से भी वो हिल जाता है और घास जो है, और ऐसा ही मेरा भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वही मतलब भक्ति मार्ग में अग्रसर कर सकता है। और उसमें तीनादपि सुने तरुरूपी सहिंस न, और मान अपमान, कोई छोटा मोटा बात बोल देता है उसमें भी कोई विचलित तो नहीं होता है, वही कृष्ण भक्ति का अधिकारी है। और आज का कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं प्रिय भक्त कौन है, वही सेम ही है, जो भगवान का एनी टाइम मान अपमान एवरीथिंग मनुष्य से कोई विचलित तो नहीं है, जो भक्ति मार्ग में स्टील है, ये कहा जाएगा। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, ये मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा पहले एंगल में पढ़ता हूँ। पुनराय शुद्ध भक्तिर उल्लेख करार पर এই শ্লোক দুটিতে भगवान शुद्ध भक्तिर अप्राकृत गुणावलीर वर्णना करेছেন। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, शुद्ध भक्ति का मार्ग, ये प्रीवियस श्लोक का 3-4 हम लोग को क्या देखा, शुद्ध भक्ति का प्रोसेस क्या है, ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा, इसमें से ये प्रॉफिट हो, ऐसा ऐसा भक्ति मार्ग के बारे में उल्लेख किया है। ये सब होने का साथ साथ अभी और भी अच्छा तरफ से मतलब और भी क्लियरली बताने को जा रहा है, जो भगवान का शुद्ध भक्ति का गुणावली, मतलब जो प्योर डिवोटी बा सच्चा पर्सन उसका गुणावली क्या क्या सिम्टम्स उसका बारे में। ओके, शुद्ध भक्त कोनो अवस्थातेই বিচলিত হন না, তিনি কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এমনকি তিনি তার শত্রুর প্রতি শত্রুতা করেন না। তিনি মনে করেন আমার পূর্বকৃত কর্মের দোষে এই লোকটি আমার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করছে, তাই কোনো রকমের প্রতিবাদ না করে নীরবে সে कष्ट सह्य कराए सिंह। देखिए इधर क्या बताने को जा रहा है, थोड़ा हम लोग को समझ में होना चाहिए। जो शुद्ध प्योर डिवोटी वो क्या होगा, कोई चीज़ों में विचलित तो नहीं है, जो स्टील है भगवान के लिए, किसी से भी ईर्ष्यापरायण जेलसी भाव नहीं है और हिंसात्मक नहीं है। और शत्रु मतलब हम लोगों को बहुत सारे शत्रु मिल जाता है मेटेरियल जगत में रहते हुए काम करते हुए, तो शत्रु को भी कभी भी वो शत्रु नहीं समझता है, वो क्या सोच रहा है, जो ये मेरा पीछे जन्म का फल है। मैं अगर ये थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, मैं अगर किसी से पीछे जन्म में कोई कर्म कर चुका तो वो कर्म का फल अभी हमको मिल रहा है। ये है प्योर डिवोटी का सिम्टम। कोई कोई साधारण मनुष्य क्या होता है, कोई चीज़ कोई मनुष्य का पास से लेने के लिए होता है बा कुछ भी करता है तो ऐसा झगड़ा विवाद लग जाता है,
किंतु जो प्योर डिवोटी है वो क्या सोच रहा है, इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी भाई श्लोक में कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे हैं, जो 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 हाई टेज वाला, मतलब नॉर्मल के लिए नहीं हो सकता है, जो लोग हाई टेज वाला डिवोटी, जो प्योर डिवोटी, वो लोग किसी से भी शत्रुवध नहीं करता है। मतलब अगर कोई मनुष्य झट से आके शत्रु भी करने के लिए सोचेगा फिर भी वो पीछे हटेगा, क्यों, उसका स्टेज जो है वो हाई है, क्योंकि उसमें से उसको फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। इसलिए हाई टेज वाला के बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य जो दे रहा है, जो वो लोग अगर कोई मनुष्य कुछ बोल भी दिया बा कोई चीज़ मांग भी लिया बा वो उधार नहीं चुका है, फिर भी वो सोचेगा ये भगवान का कृपा है। और रास्ता में चलते हुए कभी कभी हम लोग को कोई कठिनाई हो जाता है, कोई चोट भी आ जाता है, तो ये भी सोच रहा है जो ये भगवान ने दिया, मेरे को और भी ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा कम करके दिया। यह है भक्ति का लक्ष्मण, जो आज का आचरण का बात बताने को जा रहे हैं। एनी टाइम नीरव है, साधारण मनुष्य नीरव नहीं रह सकेगा, नीरव बोलेगा तो ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ कृष्ण का वाणी छोड़ के और कोई बात नहीं, एकदम दूसरा कोई बात में थोड़ा भी आएगा तो नाक कान सब बंद रखेगा, कर्म का ऊपर फोकस, और एनी टाइम नीरव इस तरफ से है जो भगवान का गुणगान सुनते जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा बातें जो जरूरी है उतना है तो उसको नीरव कहा जाएगा, माने एकदम स्टील। वही सिम्टम्स आज का कृष्ण भगवान इधर प्रभुपाद जी भी दे रहा है, कृष्ण भगवान ही बताने को जा रहे हैं। तो देखिए दोष, कोई मनुष्य अगर दोष त्रुटि भी कर लेता है, कोई कोई चीज़ों में हो जाता है, कोई खाना पकाने का टाइम बा कोई चीज़ों में बा कोई दूसरा पार्टी, भक्त लोगों का बीच में तो कोई वो उसमें तो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब दूसरा कोई मनुष्य जो डिवोटी प्योर डिवोटी नहीं है बा दूसरा कोई मनुष्य कोई कोई कर्म कर लेता है, तो उसमें भी वो क्या करता है, ये मेरा शत्रु हो सकता है, फिर भी उसको क्षमाशील कर देता है, जो ठीक है तुम जो किया ओके, तुम अभी से नहीं करने का, मतलब उसको जो इतना गलती किया तो उसको थोड़ा दंड देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारी सिम्टम्स है। ये प्योर डिवोटी का बारे में कृष्ण भगवान बताने को जाए, और प्रभुपाद जी तात्पर्य भी दे रहा है, ठीक है ओके। इसका बाद मैं थोड़ा सा बंगाली में देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवते 10 कैन 14 चैप्टर 8 নম্বর में बोला হয়েছে तत्तेह नु कम पाम सुसमीक्ष मानो भुंजानो एतात्म कीतम विपाकम। भक्त যখন কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন বা অসুবিধার সম্মুখীন হন তিনি মনে করেন এটি তার ভগবানেরই কৃপা, তিনি মনে করেন আমার পূর্বকৃত অকর্মের ফলস্বরূপ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার ফলে আমার সেই দুঃখের ভাব লাঘব হয়ে गए। देखिए वही बात है जो बात मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए इधर भागवतम में श्लोक है 10.14 एंड 8 में इधर क्या बताने को जा रहा है, जो लोग प्योर डिवोटी है, बहुत सारे दुख भी आता है ना, कर्म करते हुए ज़्यादा आएगा, हाँ अगर बॉस लोग भी कभी कभी सिम्टम्स दे रहेगा, दुख हो जाता है, कर्म के लिए हो जाता है ज़्यादा, जो लोग कर्म में ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो दूसरा मनुष्य के पास नौकरी करता है उन लोगों को ज़्यादा दुख होता है, अपना जिस टाइम व्यवसाय वाणिज्य रहेगा उतना कम दुख होगा, ठीक है, तो कर्म के लिए हो सकता है। तो इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो दुख तो आएगा सुख उसका पीछे ही है, अगर कोई कठिनाई हो फिर भी वो सोचेगा ये मेरा पीछे जन्म का कर्म फल है, अभी जो मिल रहा हूँ मैं, अभी ये मेरा पीछे जन्म का कर्म फल में मेरे को मिलते जा रहे हैं, अभी जो मैं भक्ति मार्ग में हूँ ये पीछे जन्म का थोड़ा स्वीकृति है, उसमें से हम लोग अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यही जो भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस ही से मेरा हाथ में है और कुछ हाथ में नहीं है, मानी भगवान ही देगा, आप कितना भी कर्म करो। कोई कोई मनुष्य सोचेगा जो मैं दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा उपार्जन कर लूँ, नहीं, भगवान उसको नसीब में जितना है उतना ही देगा, उससे आगे नहीं देगा, क्योंकि 2 चैप्टर 47 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बात है, कर्मण्ये बाधी कारोस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संग हस्ते में, कर्मों करने का सबको हक है, फल देने वाला नहीं हो, कोई मनुष्य का हाथ से दे सकते हो, क्योंकि आपका पीछे जन्म का हिसाब से आपको कर्म कर जो कर रहे हैं उसका हक तुम्हारा हाथ में है, फल रिजल्ट जो आ रहा है वो भगवान दे रहे हैं। अभी भी हम लोग जो मिल रहा हूँ
वो भी भगवान ही हम लोगों को दे रहा है किसी का माध्यम से, मतलब हम लोग कर्म कर रहे हो बोल के दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बैठे ना से भगवान देगा, नहीं, भगवान कभी भी नहीं बात है। एनी टाइम कृष्ण भगवान बात रहे कर्म करो, कर्म को भी नहीं छोड़ने का। कर्म कब छोड़ सकते हैं? आप जिस टाइम हाई तेज में चला जाएगा वो अलग बात है, जिसको क्या बोलते हैं सन्यासी, वो अलग बात हो जाता है। अगर तुम मटेरियल जगत में जो जैसा व्यवसाय वाणिज्य जो भी होने दो, कर्म करने का, बैठे नहीं रहने का। तो ये बात बताने को। और एक बात है जिस टाइम इधर बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई भी हो जाता है, जैसा मैं बताया रोड का ऊपर थोड़ा डेंजरस बा चोट हो जाता है, उस टाइम जो लोग प्योर डिवोटी वो लोग क्या सोच रहे हैं, जे मेरा थोड़ा कम ही हुआ क्योंकि भगवान का कृपा है, मर्सी है। और जो लोग साधारण मनुष्य को उड़े बाप रे ये क्या हो गया ऐसा सोचेगा। यही दोनों में से डिफरेंस है। वो सोचेगा ये मैंने कर लिया, खुद करता सोच के बैठा हुआ है। और जो लोग प्योर डिवोटी वो क्या सोचे, भगवान करता है मैं उसका दास हूँ। ये दोनों में से डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा सोल, और भगवान है सुपर सोल। तो इसलिए जो लोग सोचेगा ये बॉडी मेरा है, वो लोग सोचेगा मेरा चोट हुआ, ये मटेरियल में जो भी हो। और जो सोचेगा ये बॉडी मेरे को भगवान ने दिया है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान का दासत्व करना मेरा कर्तव्य है। मतलब मनुष्य का जो लक्ष्य है कृष्ण का दासत्व करना, ठीक है। तो इसलिए वो क्या सोच रहे हैं, दुख आएगा वो कुछ नहीं है, वो तो आने वाला है। और कृष्ण भगवान खुद ही बताया कौन सा 8 चैप्टर 16 नंबर श्लोका, अवम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माउपेत्तु को नहीं, सॉरी 15 नंबर श्लोका में, माउपेत्तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। 8 चैप्टर अक्रम 15 नंबर श्लोका में क्या बात है, माउपेत्तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमम गताः। जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति है वो लोगों को मालूम है जो ये मेटीरियल जगत ये दुख का सागर है, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवत धाम में जाने। और जो लोग साधारण मनुष्य वो क्या सोच रहे हैं, जो मेरे को इतना दुख मिल गया, जैसा मैं, क्योंकि वो बॉडी सोच रहा है ना, आत्मा का साथ भगवान का कारण ये नहीं सोच रहे कोई भी, जे ये मैं आत्मा हूँ, ये नहीं सोच रहे। उसे बॉडी इधर लग गया तो बॉडी ऐसा सोच रहे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई उसको हो रहा है। तो देखिए इधर वही बात आ रहा है। इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ बंगाली में। किंतु परमेश्वर भगवान कृपार फले आमार सेई दुखेर भार लाघव हये गेছে। भगवान श्रीकृष्णेर कृपाয় আমি অনেক অল্প একটু কষ্ট পাচ্ছি, তাই নানা দুঃখ ও দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই শান্ত নীরব ও সহনশীল। ভগবত ভক্তরা সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, এমনকি তার সক্রিয় প্রীতিও। নির্মম বলতে বোঝায় যে ভক্ত দেহ সম্পর্কিত সুখ ও যন্ত্রণাকে তত্ত্ব গুরুত্ব দেন না, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে তিনি জড়দেহ নন, তিনি জড় ও দেহটি তার স্বরূপ বলে মোটি মনে করেন না। তাই তিনি সর্বতভাবে অহংকারযুক্ত ও দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন। তিনি সহিংসু এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। অত্যাধিক কষ্ট স্বীকার করে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না, তাই তিনি সর্বদা উৎফুল্ল। তিনি যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তার গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করার জন্য স্থির সংকল্প এবং তার इंद्रियों সংযত হয়, তিনি दृढ़ संकल्प युक्त। बहुत इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहा है। क्या दे रहा है, जो लोग प्योर डिवोटी है, सच्चा परसेंट, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी अल्प चीज़ मिला उसमें तुष्ट है, मतलब कोई इतना आकांक्षा नहीं है। जैसा हम लोग कर्म कर रहा हूँ, कभी कभी कोई किसी का मानी कम हो जाता है, ज़्यादा भी है, तो हम लोगों को कर्म का ऊपर फोकस ढाकने का, बॉस से कनेक्ट ढाकने का, जो आप सैलरी बढ़ाइए, दुख सो नहीं होने का, क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ, मांगना मेरा हक है, अभी देने वाला भगवान है, उसका ऊपर सीधे पे जो बॉस बैठा हुआ है मेटीरियल जगत का। अभी हमारा क्या कर्म है, सिर्फ कर्मों का ऊपर फोकस, और बॉस से हम मांग सकते हैं,
और भगवान से तो हम ऐसा प्रार्थना तो रह रहे हैं, वो मुश्किल नहीं है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, दुख तो होएगा है ना, फिर भी हम लोग को थोड़ा दुख कम होना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्योर डिवोटी है वो क्या सोचेगा जो भगवान तो नहीं दे रहा है, क्या कर सकते, क्योंकि पीछे जन्म में हमारा नहीं है। अगर ये जन्म में मेरे को जो मिल रहा है, शायद अगला जन्म में वही मनुष्य को मैंने वही कर्म किया था, टेस्ट करके बोला था तुम ये कर्म करो, सैलरी कम था, अभी वही घूम फिर के मेरे को पास आ गया। ऐसा ही तो हो रहा है ना, जो हम लोग ये जन्म में जो कैरी करके लेके जाएगा, अभी जो ले रहा हूँ ये हमारा नेक्स्ट जन्म में, ये जन्म में भी थोड़ा थोड़ा मिलते जा रहा है, और नेक्स्ट जन्म में भी इसका फल रिजल्ट आएगा। सब रिजल्ट एक चांस में नहीं आता है। अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं, हर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा भी करने दो फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा पीछे जन्म का मैं किसी को फंसाया, ये हमको समझ में आएगा। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है, भक्त में, वो लोगों को मालूम हो रहा है, साधारण मनुष्य को मालूम नहीं है। वो लोग सोच रहे क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा द्वंद्व भाव हो जाता है। किंतु जो प्योर डिवोटी है, इधर क्या बताने को जा रहा है, वो पाइए तार मर्म में क्या दे रहा है, जो सुख दुख कठिनाई हो रहा है फिर भी वो सोच रहा है कि ये मेरा कर्मफल है, ये मेरे को मतलब लेके आया इसलिए मेरे को दे रहा है। ये है दुख तो आएगा ही, फिर भी हम लोग को स्वयं से होना चाहिए। और कोई शत्रु मनुष्य आ जाए तो उससे भी थोड़ा हट के रहना जरूरी है। जो लोग प्योर डिवोटी है, जो लोग देखो मंदिर में रहता है, वो लोग कोई साधारण मनुष्य भी इतना बातें भी नहीं करता है, बात करने का टाइम ही नहीं है। ऐसा 24 आवर्स भगवान का गुणगान होगा भी चलेगा। जैसा हरिदास ठाकुर 2 आवर्स होता था, उसमें भी खाना पीना सब कुछ 22 आवर्स उसको भगवान का गुणगान एवरीथिंग, और ओनली 2 आवर्स उसका शारीरिक स्थान एवरीथिंग खाना पीना। ये हमारा भक्ति मार्ग का प्रोसेस हरिदास ठाकुर। और भी है बहुत सारी प्योर डिवोटी है जो लोग अभी भी करता है, 2-3 घंटा सोता है, उसका बाद आखा दिन भगवान का गुणगान अपना कर्म में भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ये होता है भक्ति। तो इसलिए इतना कठिनाई हम लोगों को नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो लोग अच्छा परसेंट है वो लोग कर रहे हैं। और कि कृष्ण भगवान का मार्ग में जो लोग रहेगा वो लोग इतना उच्छ्वास भी नहीं होता है। क्यों मालूम है? कोई कोई मनुष्य क्या होता है, ज़्यादा मानी आ गया तो बहुत मतलब ये उच्छ्वास हो जाता है, जो मेरे को इतना मिल गया हाय उतोष, और कम मिल गया अभी दुख हो रहा है, ऐसा होता है। नहीं, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों के पास बहुत बहुत मानी है, फिर भी वो लोग सोचेगा जो मेरा पास क्या है, ये तो भगवान का है, जो दिया वही है। किसी से बात करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेरा पास इतना है, ये है, वो है, लाइक दैट दिखाने का भी जो नहीं, जो है वो भगवान ने मेरे को दे रहा है। इसको बोलता है उत्पल, मतलब कोई चीज़ों में इतना उच्छ्वास नहीं है। हाँ ठीक है, जो दे रहा है भगवान दे रहा है मेरे को, फिर से कर्मों का और अपना जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्पिरिचुअल पार्ट का इम्पोर्टेंट जो है वो, उसको छोड़ के आप कुछ भी करें, अगर मानी चला भी गया वो मुश्किल नहीं। वो तो जो भगवान हमको जीव मनुष्य जन्म दिया वो मेरे को खिलाएगा, ये जरूर है। मतलब जो इधर हमारा भक्ति मार्ग का बहुत सारी मतलब कोटेशन भी है, जैसा इधर एक मैंने देखा था, भक्ति रसालमित सिंधु 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में भक्ति मतलब प्योर डिवोटी का मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, जैसा अन्नाभिलाषिता सुनो ज्ञानो कर्माद्यो नाविद। अन्नाभिलाषिता मतलब भगवान को जो सब चीज़ें है वो सब छोड़ के उन्नु दूसरा का तरफ ऐसा शून्य होना चाहिए, जीरो। दूसरा जो सिम्टम्स होगा वो सब जीरो होएगा, उसमें कोई ज्ञान कर्माद्यो नावित। तो इसलिए इसमें क्या बात आने को, अनुकूल न कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, अन्नाभिलाषिता शून्य होना चाहिए, बा अन्नाभिलाषिता जितने सारी ज्ञान वगैरह है वो सब जीरो होना चाहिए, नहीं तो हमारा माइंड को डिस्टर्ब करेगा, एनी टाइम वो खटकते जाएगा। क्योंकि ये माइंड जो है, जो इंटेलिजेंट दिमाग जो है, ये क्या होता है, शैतान का कारखाना है। इसको खाली रखेगा वो आपको दिमाग खराब करके ही छोड़ेगा, भक्ति मार्ग में आने नहीं देगा, क्योंकि दिमाग खराब कर देगा। क्यों? आप जो भक्ति मार्ग में आने के लिए कोशिश कर रहे वो माया देवी झट से पकड़ लेता है, इसलिए दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखने का। तो इसलिए इधर बात आने को जा रहे भक्ति रसालमित सिंधु में 1:11 में क्या, अन्नाभिलाषिता सुनो, अन्नो दूसरा कोई चीज़ों का ऊपर जीरो होने का,
एकदम जीरो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। और वो ज्ञान का भी थोड़ा जीरो होने का, भक्ति मार्ग का जो अनुकूल्य न कृष्णानुष्ठान भक्ति उत्तम, भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों को फोकस रखने का। जैसा एक बात बताने को जा रहा हूँ, किसी किसी का नौकरी कम है, माने नौकरी बोले सैलरी कम है, नौकरी का बात नहीं, नौकरी तो हर मनुष्य को मिलता है, सैलरी कम है तो दूसरा जाएगा तो सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ भक्ति मांग नहीं है, तो वो परफेक्ट नहीं है, वो कैंसिल है। वही बात है इसमें, अनुकूल्य न कृष्णानुशीर्ण भक्ति उत्तम, अनुकूल मतलब भगवान का उपलब्ध के लिए जो परफेक्ट है वो होना चाहिए, वो भी भक्ति मांगना हाई स्टेज आएगा। अगर हम लोग ऐसा सोचेगा जो थोड़ा मानी के लिए भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है वो छोड़ के मानी का पीछे भागते रहो, थाले अन्नाभिलाषी का शून्य हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, वो उधर ही एक्टिव रहेगा, मेटेरियल जगत का जो एक्टिव वो रहेगा, क्योंकि उसमें मानी का पीछे भागने का। हाँ, वहाँ भी भक्ति मार्ग है, यहाँ भी है, फिर आप ऊपर का तरफ जा सकते हैं, लेवल लेने का, ये थोड़ा हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले हम लोगों को नौकरी छोड़ने का साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पर भक्ति मार्ग है कि या नहीं, जो हम थोड़ा सा सीख लिया, जो भी 1 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए, थोड़ा तो सीखा, जो भी सीखा उसमें है क्या नहीं वो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कठिनाई हो सकता है, तो हमको पीछे नीचे का तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग ना जहाँ पर नहीं है वहाँ हमको जाने का जरूरी नहीं। जहाँ पर भक्ति मार्ग है वहाँ थोड़ा कम है, क्योंकि वो भगवान का साथ कनेक्टेड है, उसका ही जय होएगा। और जो भक्ति मार्ग छोड़ के थोड़ा मानी के लिए ऊपर का तरफ जाएगा बा दूसरा कोई फिर, तो उसमें क्या होगा, मानी बा मेटीरियल जगत में एक्टिव रहेगा, भक्ति मार्ग का उसमें प्रोसेस कम हो जाएगा, तो उसमें फॉल डाउन होने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसलिए हमारा मानी का जो इन्वेस्ट उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा जो मेरे को नौकरी चला गया, नौकरी का एक जरूरी है, वो अलग बात है, मतलब एक छोड़ के एक से क्रॉसिंग करेगा तो हम लोग को वहाँ पर और कोई डिवोटी है कि चक्कर। अभी तो हर वर्ल्ड में ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जो प्योर डिवोटी नहीं है, हर जगह भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, जो कहाँ पर है, कौन चैंटिंग बैग लेके घूम रहा है वहाँ मिल जाएगा आपको, कोई कैंटीन में चले जाओ। तो इसलिए हमारा थोड़ा नौकरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद थोड़ा सा देख लेता हूँ। তিনি কখনো কুকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ ভগবত ভক্তির প্রতি তিনি তার দৃঢ় নিশ্চয় এবং কাউকে বিচলিত করতে পারেন। তিনি সর্বত্রভাবে সচেতন যে শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত চিরন্তন ভগবান, তাই কেউ তাকে বিচলিত করতে পারে না। তার এই সমস্ত গুণাবলী থাকার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের মন বুদ্ধি ও সর্বত্রভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই প্রকার উন্নত মানের ভগবত ভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু ভগবত ভক্ত ভক্তিযোগের বিধিনিষেধ পালন করার ফলে সে স্তরে অধিষ্ঠিত হন। অধিকন্তু ভগবান বলেছেন যে এই ধরনের ভক্ত তার অতি প্রিয়, কেননা তার পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য ভগবান সর্বদাই তার প্রীতি সন্তুষ্ট থাকে। देखिए, कोई मनुष्य ऐसा बोलता है जो मैं भगवान को मिल गया, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, भगवान है ठीक है, ऐसा भी कोई साधारण मनुष्य बात करता है, उसको मतलब है उसका पास भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ, उन लोगों को साधारण बोल सकता है जो आप लोग भगवान का नाम लो, इतनी हो सकता है, तो उसको तो और आगे नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि उसका पास भक्ति मार्ग नहीं है। कृष्ण भगवान इस श्लोक में क्या बताने को जा रहे हैं, जो मनुष्य का माइंड एंड दिमाग इंटेलिजेंट ये अधिकतर मेरे से मतलब लगा हुआ है, वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा प्रिय है, और कोई नहीं है। जो सोचेगा जो मैं थोड़ा सा भगवान का नाम नहीं लिया मैं बस ओके, ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कौन प्रिय है मेरा, जो मेरा एनी टाइम गुणगान करे, 24 आवर्स होगा भी चलेगा, सोते हुए जागते हुए किधर भी जाओ कैसे भी रहो, तो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से और एक बात है, कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो दे रहे, भक्त प्योर डिवोटी मिलना मतलब मेटेरियल बहुत दुर्लभ है, बहुत कोटि जन्म का बाद फिर हम लोग मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलने का बाद भी भक्ति मार्ग फिर भी कई जन्म का बाद मिल सकता है, और भक्ति मार्ग मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
अभी देखिए ना, बहुत सारी मनुष्य और वर्ल्ड में है, सब मनुष्य को भक्ति मार्ग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोई कोई मनुष्य बोलेगा जो भक्ति मार्ग में है क्या, ऐसा क्वेश्चन करेगा। पहला तो भक्ति मार्ग का मेन प्रोसेस है क्या है? स्टील, जैसा आज का सिम्टम से बताने को जा रहे हैं। किसी से ईसा परायण, मतलब जेलसी भाव जो है वो नहीं होने का, ये पहला सिम्टम्स। किसी से एके अपर से टक्कर, ये जो भाव, ये भक्ति मार्ग का पहला प्रोसेस है। क्यों बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि देखिए हम लोग को हिंसात्मक जो है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होने का चांस है एके अपर से। यही मिलजुल के रहना, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है और वर्ल्ड में, यही प्रोसेस सिखा रहा है। इसको ही भक्ति मार्ग कहा जा रहा है। एक साथ में रहना, भगवान का गुणगान करना। और एक बात है, भगवान का दिव्य नाम जो होली नेम, होली जो के लिए मेडिसिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें से भगवान का साथ और मनुष्यों का साथ, भक्तों का साथ कनेक्टेड है एके अपर से। और यही नामों में हर पावर है। कोई मनुष्य कितना भी कठिनाई होने दो, जैसा जगाए मादाए, फिर भी उद्धार हो गया। कितना कठिनाई था, वो तो क्या बोलता है, करताल देखेगा तो मृदंग देखेगा तो डांस करने लगता था, इसको तोड़ने का कैसा सोच रहा था, क्योंकि वो फिर लास्ट में भगवान का पास सरेंडर हो गया, फिर उद्धार हो। देखिए इतना कठिनाई मनुष्य भी कौन सा चीज़ों में उद्धार हुआ? सेम नामों से। नामकारी बहुधा निजस्व। इसलिए हम लोग को पहला सिम्टम्स जो होता है वो है नाम। नाम में पहला क्या होता है? शोभनम, शोभन करना कान से। तारपरे शोभनम कीर्तनम, हाँ शोभनम कीर्तनम शरणम, ऐसा जो है 9 विधा भक्ति में। तो शोभनम होচ্ছে सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नाम जो हम लोग करेगा, वो नाम पे सब पावर है और इसमें से हम लोग को एक्टिव होएगा। और एक बात है, ये नामों में भगवान सबका साथ कनेक्टेड आ गया। देखिए हम लोग का भी जो जमायत हुआ सिर्फ भगवान का नाम से, और कुछ है इसमें? भगवद गीता और नाम, पोचार पोसारी। क्यों? ये नाम से हम लोगों को कनेक्टेड हो रहा है और भगवान उसको कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जे तुम कम से कम नाम बोलो, कुछ भी करो, पहला तो नाम पुकारो, नाम में कनेक्टेड होएगा। माइंड को सरल सिंपल रखेगा। सिंपल रखने के लिए हम लोग को नाम होना जरूरी है। कौन सा नाम? हरे कृष्ण मोहम्मद, होली नेम। तो इसलिए आज का श्लोक में इतना है। तो देखिए प्योर डिवोटी का सिम्टम्स और नाम हम लोगों को इन टाइम लेना चाहिए। और भगवान का नाम लेगा तो हम लोगों को क्या होगा? माइंड पूरा स्टिल रहेगा, बिचौली तो नहीं होगा। आप देखिए मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ। जो लोग 2-3 माला कर रहे हैं, जॉब 1 माला 2 माला जो भी कर रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक सुबह उठ के करेगा बा एनी टाइम स्मरण करते जाएगा भगवान का नाम। जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था, जो मर्जो पिता मनोबुद्धि, मतलब मेरे से तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनु सर्वयुद्धो च, मतलब एनी टाइम मेरा नाम स्मरण करते हुए तुम्हारा कर्म करो। तो हम लोग जिस टाइम कर्म करेगा स्मरण करते हुए, और देखिए उसमें क्या होगा, हम लोग कोई डिस्टर्ब बाहर का आएगा, देखो वो भागते जाएगा, डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली थोड़ा क्लियर होगा। तो हम लोग फोकस अच्छा होना चाहिए, सरल एकदम, जैसा 4 रूल रेगुलेशन का ऊपर। ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि 4 रूल रेगुलेशन का ऊपर कर्म करेगा, वो मतलब रूल जो है उसको फॉलो करते, मतलब वो कर्म नहीं करने का जो है, जैसा अवैध त्रिसंग, माछी मटन कैरी करके वा बेचना, एवरीथिंग, वो सब नहीं, प्याज लहसुन एवरीथिंग वो सब क्लोज, नेशा भांग जी नशा वो क्लोज, बेचने का खाने का एवरीथिंग, और जुआ खेलना, लॉटरी वगैरह, ये जो 4 चीज़, ये 4 चीज़ छोड़ के आप दूसरा कोई कर्म में फोकस रखो, तो भगवान का नाम लो, आपको प्रोग्रेस होएगा मेटीरियल जगत का आध्यात्मिक दोनों में। तो इसलिए आज का श्लोक में इतना है। कोई क्वेश्चन तो कर सकता है। আমার শ্বশুর বাড়ি গেলে আমার শালা যদি তুমি 10 ঘন্টা বসে থাকো, ওই 10 ঘন্টা বাঞ্ছা কল্পতরু বৎস কৃপা সিন্ধু বচ পতিতানম পাবনেব বৈষ্ণবেব নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়, দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ।